how are you all? I hope you are doing well in your respective areas. Myself Bhavika, I am again here for you all to tell you about the two beautiful and very effective serums with their pros and cons. I will compare them both. What are the main basics and what are the benefits of both? Why the serums are required on your skin and why which will suit your skin the more and which will suit less. I will tell you everything in this video. So please watch this video till end and let me know if you like it or not, and if you have any comments regarding to this, and if you have any doubts regarding this, please let me know in the comment section. I will answer it all. So what are these two serums? I will let you know. So okay guys, my two serums which I'm going to discuss today are, the first one is the Derma Co Niacinamide 10% Niacinamide serum, right? And for acne marks, and it contains vitamin B3 plus zinc, plus this is for day and night. Okay guys, what are these two serums and how they works? Everything I will going to tell you in this video. The first one is, these are the two serums. Can you see? This is Mamaearth Ginseng serum. This is also for acne marks, and this is Derma Co Niacinamide serum. These both serums are for acne marks and they both work very well, but I'm going to compare them because one of them is very effective and the other is less effective by some percentage. So I'm going to tell you. So first I will be discussing this Derma Co. So let's get started guys. The first one I am going to discuss is the Derma Co. This is 10% niacinamide serum and this is for acne marks. This contains vitamin B3 and it contains zinc also. So what is it all about? Actually this Derma Co, firstly I will tell you that why serums are necessary for your skin. जब तक मैंने अप्लाई नहीं किए थे, when I have not applied on the serums, I didn't found that beautiful results on. Due to serum, the skin lining, the skin shining and the skin quality, like the pore area and everything gets improved. जब तक आप सीरम नहीं लगाते हो, आपकी स्किन को एक बैरियर नहीं मिलता मॉइस्चराइजर के बाद या क्लींजिंग के बाद, सीरम आपका एक नरिशमेंट करता है. अगर हम बोले कि हम सीरम और मॉइस्चराइजर में से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं, तो नो, द आंसर इज़ नो. सीरम जो है एक आपके जो पोर्स हैं उनको नरिश करके एक ऑयलिंग का काम करता है. ऐसा ऑयल जो आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा बट उसके स्किन के अंदर के पोर्स को बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा और एक बैरियर क्रिएट कर देगा आपकी स्किन के ऊपर, ताकि जो एक्सटर्नल जो आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट ना कर पाएँ. तो ये अब तो एक तरह से एक ऑयलिंग का काम करता है, बट ये आपकी स्किन को ऑयल नहीं बनाता. अब मेरी जो स्किन है वो है एक्ने प्रोन स्किन एंड इट्स वेरी कॉम्बिनेशन स्किन एंड इट इज़ लाइक यू कैन से इट्स वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव. इस पे ये Derma Co का सीरम बहुत अच्छे से काम किया है और इसमें नियासिनामाइड है. जो नियासिनामाइड या निकासिनामाइड होता है वो जो आपके मार्क्स को, एक्ने मार्क्स को बहुत जल्दी हील अप करता है. मैंने इसे यूज़ किया है, आई थिंक ये 6 मंथ्स हो गया. मैंने दिसंबर से इसको दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने इसको ऑर्डर किया था और अब तक मैं इसको यूज़ करती आ रही हूँ. और एक ही सीरम देख लो इतने टाइम तक चल रहा है. ये मीन्स फॉर द वन पर्सन यू कैन गो फॉर दिस किट for 4 to 5 months, and I have discussed that all the Derma Co kit which I am using right now from 6 months, it is also lasting till now from December 2020. So, and the packaging is very good and the quality, the product rating, it costs 600 and it's worthwhile because ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 months तक चलती है, 5 to 6 months. अगर आप थोड़ा डे और नाइट में 2 बार यूज़ करती हूँ, अगर आप एक टाइम यूज़ करेंगे तो और चल जाएगी. तो इट्स जो ये 6 months तक चल जाती है बहुत ईजिली. और ये मार्क्स को बहुत अच्छे से गाइस, बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है. अगर आपने कोई भी सीरम आज तक लिया है और आपके मार्क्स जो हैं अभी तक नहीं गए हैं, तो आप प्लीज़ स्विच टू दिस Derma Co सीरम बिकॉज इट अफेक्ट्स योर स्किन very effectively, very effectively. So please go for it and tell me, does it work or not? Definitely it will work because I have sensitive skin, combination skin, oily, dry, all the skins are mixed. So इसने इस पे काम बहुत अच्छे से किया है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा. आप जाके देखिए. और इसको अप्लाई करने का तरीका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, Derma Co की वीडियो जो मैंने डाली है, आप उसमें देख सकते हैं. मैंने उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे यूज़ करना है. इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये भी ये कहता है कि एक्ने मार्क्स के लिए ही है, और जो Mamaearth का मैं आपको अभी शेयर करूँगी वो भी एक्ने मार्क्स के लिए ही है. इसके प्रॉज जो हैं मुझे ये लगे, प्रॉज एंड कॉन्स इन दोनों के जो हैं मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इसके जो
मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ये जो कवर अप बहुत जल्दी करता है अपने मार्क्स को। आप डेली जब लगाते हैं डे और नाइट में तो आपकी इंप्रूवमेंट होती है स्किन की, स्किन का टेक्सचर बढ़ता है, स्किन की क्वालिटी, स्किन की शाइनिंग, सब कुछ इससे बढ़ता है, सब कुछ। और फिर आप जब मॉइस्चराइजर और कुछ और लगाते हैं तो वो भी बढ़ता है। तो ओवरऑल इट्स गुड पैकेज फॉर योर स्किन एंड इट्स मनी फ्रेंडली। आई विल से इट्स बजट फ्रेंडली बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है। तो अगर आप कोई 200 सीरम 300 का सीरम लेते हैं और वो आपका 2 महीने चलेगा तो इट्स बेटर टू टेक दिस सीरम बिकॉज ये लास्ट करता है ज़्यादा देर के लिए और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। एंड द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मामाअर्थ एंड द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मामाअर्थ स्किन करेक्ट फेस सीरम। दिस इज स्किन करेक्ट फेस सीरम। आई थिंक आपको ये नजर आ रहा होगा, कैन यू सी इट, स्पॉट इट? This is also with niacinamide and ginger extract. This also claims that it goes good for acne marks. But जो मैंने कंपैरिजन किया है इन दोनों के बीच में, मेरी कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग, तो आई फाउंड डर्माको मोर बेटर बिकॉज उसकी जो क्वालिटी है, बोथ की जो कंसिस्टेंसी है, लाइक आई विल शो यू, इसका भी एक ड्रॉपर आता है, इसकी कंसिस्टेंसी भी इस तरह की है, कुछ normal, not so liquid and not so solid. It's a normal in between liquid and solid. It's a liquid mixture, but इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। और दूसरे की बात करते हैं, अब डर्माको की बात करते हैं तो डर्माको की भी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। इसकी थोड़ी सी जो है थिन कंसिस्टेंसी है, इसकी थोड़ी सी से थिक है, लेकिन ये जो इसका काम करने का जो तरीका है, आपकी एक्शन है, जो मुझे मेरी स्किन पे लगा, मेरे मार्क्स जो थे आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कितने ज़्यादा थे और अब कम हो चुके हैं, तो इसने बहुत इफेक्ट किया है। आई वुड नॉट से कि होते नहीं है पिंपल्स, दोबारा होंगे, बट इससे आपको एक बैरियर मिलेगा इन दोनों से। बट दिस वन इज़ मोर बेटर देन दिस। दोनों में निकामाइड सीरम है, दोनों ही एक्ने मार्क्स और स्कार्स के लिए डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेस, पाबन फ्री और सल्फेट फ्री। They claims that this is dermatologically tested, this is also paraben free, sulfate free, this is also, but मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा इसके ऊपर बिकॉज ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे, मैंने यूज़ किया। ये भी कम इफेक्टिव नहीं है बट इसके कंपैरिजन में इफ़ आई विल गिव 100 मार्क्स आई विल गिव दिस 80। सो दिस इज़ द डिफरेंस विच आई फाउंड एंड I thought I should share with you so that you can find out the difference between the two, and when you're going to buy you can have that criteria in your mind that which is going to be the best. So this is going to be the more best than this. बट ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये भी करता है। अप्लाई करने का तरीका दोनों का सेम है, आपने डे और नाइट लगाना है, बिफोर आफ्टर क्लींजिंग योर फेस विथ एनी फेस वॉश जो आपको अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र या जो भी जेल जो आप लगाते हैं वो लगाइए, और टोनिंग भी करते हैं स्किन की तो वो भी कीजिए, और साथ में सीरम को भी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये आपको एक अच्छा व्यू और इफ़ेक्ट देगा, आपकी स्किन को लस्टर देगा, शाइन देगा। और आप विदाउट जो यूज़ करते हैं अपने स्किन को, आप मतलब ट्रीट करते हैं विदाउट एनी सीरम, आपको उसमें डिफरेंस और आफ्टर सीरम बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं सीरम में तो आई वुड रिकमेंड डर्माको द फर्स्ट वन एंड आई विल गिव द सेकंड वन दिस मामाअर्थ। एंड द मेन थिंग आई वुड टेल यू ऑल, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट इनके सेम है, इंग्रेडिएंट्स सारे इनके इंग्रेडिएंट्स सेम है। और द बेस्ट पार्ट मुझे इन दोनों का ये लगता है एक कि इन दोनों में ग्लिसरीन है, और आपकी स्किन को नरिशमेंट के लिए, कोई भी ऑयलिंग अगर आपको चाहिए तो आपकी स्किन को नरिशमेंट के लिए ग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ गो फॉर ग्लिसरीन बार एंड गो फॉर इट बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत एक टेक्सचर लस्टर सा प्रोवाइड करेगा। दोनों में ही ग्लिसरीन है, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें, ग्लिसरीन अगर है इन दोनों में, और ये आपके कोई भी सीरम में अगर ग्लिसरीन होता है वो आपकी स्किन की क्वालिटी को अच्छा करता है और आपकी स्किन के लस्टर को इम्प्रूव करता है। ऑयलिंग नहीं ज़्यादा हमने करनी, इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके ऑयल कंटेंट को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को आपने ऑयली दिखाना है, नो, लेकिन ये आपकी स्किन को बिना ऑयली दिखाए बहुत फ्रेश और शाइनी दिखाएगा, बहुत शाइनी। दोनों में ड्रॉपर हैं, दोनों का तरीका सेम है यूज़ करने का, लेकिन इफेक्ट डर्माको का ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड I would recommend you all to please use the serum, start using the serums. You can also use moisturizer, any face wash, but involve your serum according to the skin care. Since I have acne prone skin, so I am going for this acne mark serum.
There are so many available serums in the market, but for the acne marks, I found these two better. And the one which is more superior, I have already told you. So you can go for it very easily, very efficiently. And if you have sensitive skin, combination skin, definitely you should try Dermaco, because it has healed my skin very easily. And the next, I would recommend you all, in the next video I am going to tell you about the natural, the earth made, the god gifted toners and the god gifted face packs, which are very very effective for any type of skin. For any type of skin, they are going to be the, you know, gemstone for that skin. So I will tell you in the next video, and stay tuned for my next video. That video is really going to help all of you, all men, all women, बॉयज़ गर्ल्स, जिनको भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो टोनर और वो फेस पैक जो गॉड गिफ्टेड है, वो आपको बहुत इजीली आप घर पे उसको यूज़ करके देख सकते हैं आपके इफ़ेक्ट. तो मैं वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. वो हो जाएगा आपका नेचुरल स्किन केयर, और ये जो हो जाएगा एक्सटर्नल स्किन केयर, वो भी एक्सटर्नल ही होगा, बट ये होगा विद प्रोडक्ट्स, केमिकल, लिटिल केमिकल प्रोडक्ट्स, एंड वो हो जाएगा नेचुरल की कैटेगरी में. तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो तक जो मैं डालूंगी, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड shower some love to me, and like, share and subscribe to my channel so that you get notified for the upcoming video. So bye bye guys, see you in the next video. Love you all.